ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੈਪਟਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਸ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਇਰੈਸ਼ਨਲਸ, ਇੰਟੀਜਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚੈਪਟਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਛੱਡ ਦੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 10th ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋੜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੇਅਰ ਹੈ, ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੀਨੀਅਰ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2x equals to 5 ਜਾਂ 2x plus y equals to 5, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ। ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। x ਤੇ y ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। x ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਹੈ, y ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ not a linear equation ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ। 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 2x = 5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਲਫਾਬੈਟ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ x ਤੇ y ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ, 4 ਵੇਰੀਏਬਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x - 5 = 0, x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ 1 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਸੀ? ax + b = 0 ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ a 0 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਅਗਰ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 0 ਹੋਗੀ ਤਾਂ x ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ 5 = 0। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ a ਜੋ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। b 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ b 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ?
2x इज इक्वल्स टू 0। सो ये एग्जाम्पल्स ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल दी, ਉਹਦੀ जनरल फॉर्म होंगी है ax प्लस b, जिथे कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन जो आप कढ़ते हैं ना, हम आप गल करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन वो वैल्यू होंगी है जिहड़ी इक्वेशन दे विच जदों आप पुट करिए तो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आवे। सॉल्व किस तरह करेंगे, जिस तरह साडे कोल x माइनस दा 5 इक्वल टू 0 है, 5 नूं मैं इस तरफ लै जावां तो x इक्वल्स टू 5 आ गया। इनू मैं कहूँगी कि ये मेरा इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया। सो जो इस सोल्यूशन मैं वापस इक्वेशन च पुट करा, x की वैल्यू 5 पुट कर दूँ, -5 इक्वल टू 0, सो 5 - 5 इक्वल टू 0, मेरे को लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ पॉइंट आ x इक्वल्स टू 5 ये सोल्यूशन है तो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आऊगी, राइट हैंड साइड इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड आई, ਇਹਦਾ मतलब ये पॉइंट सोल्यूशन बनता है। सो ये आप गल की है सिर्फ लीनियर इक्वेशनस इन वन वेरीएबल्स की किस तरह की होंगी है, वो जनरल फॉर्म की होंगी है ax प्लस b टाइप की, जिथे कि a 0 ना होवे, ਉਹਦਾ सोल्यूशन किस तरह सॉल्व करके कढ़ते हैं। तो सोल्यूशन का मतलब है कि जो मैं वापस उन्होंने पुट करा तो मेरे को लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आए। हुण आप गल करते हैं लीनियर इक्वेशनस टू वेरीएबल्स वाली कि वो किस तरह की होंगी है तो वो जनरल फॉर्म किस तरह लिखांगे। कोई भी लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स होगी जिस तरह 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन लिखी मैं, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू द साइन है विच दो वेरीएबल्स ने x ते y, दोनों वेरीएबल्स की पावर 1 है, ਇਹਦਾ मतलब है बन गई साढ़े को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरीएबल्स। ठीक है, अगर मैं इनू इस तरह लिखा ये भी बन गई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरीएबल्स। 5 नू मैं इनू इस तरफ ले आए। सो ये जनरल फॉर्म किस तरह लिखांगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a comma b are not both zeros। a and b are not both zero कि a ते b दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जे a भी जीरो हो गया तो a वाली टर्म गायब हो जानी है, b भी जीरो हो गया तो a भी गायब हो जाना, तो सिर्फ c रह जाऊगा। मान लो इत्थे a भी जीरो हो गया तो 0 × x, b भी जीरो हो गया तो 0 × 5, तो -5 इज इक्वल टू 0, ये तो खत्म ही हो जाएंगे, तो -5 इक्वल टू 0 आ गया, ये तो नहीं होंदा। ठीक है, तो गलत आ गया ना रिजल्ट, -5 कभी 0 के बराबर नहीं होंदा। ਇਹਦਾ मतलब a ਤੇ b ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ 0 नहीं हो सकते, कोई भी एक 0 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ है। ਜਿਵੇਂ मान लो सिर्फ a 0 हो जाए तो इक्वेशन की बन जाएगी, अगर a 0 हो गया तो 3y - 5 इक्वल टू 0, ये तो साढ़े को इक्वेशन बन रही है। या सिर्फ b 0 हो गया तो 2x - 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन रिड्यूस हो गई। इक्वेशन जदों एक वेरीएबल 0 हो गया तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, पर a ते b दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल्स होगी जो दो अल्फाबैट्स होंगे, उसकी जनरल फॉर्म आप किस तरह लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर जिथे कि a ते b आर नॉट बोथ 0, दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। सो ये आप जनरल फॉर्म लिखी वन वेरीएबल वाली इक्वेशन की तो टू वेरीएबल वाली इक्वेशन की। हुण आपां सोल्यूशन की गल करते हैं कि अगर साडे कोई लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरीएबल तो उहदा आपां सोल्यूशन किस तरह कढदे सीगे। सोल्यूशन कढण लई एक तो साडे कोल सीगा ट्रायल मैथड। ट्रायल मैथड की करदे सीगे, पॉइंट्स पुट करके देखते सी किहड़े इहनूं सैटिस्फाई करांदे आ। जिस तरह कि इस इक्वेशन दे विच मैं अगर x नूं 1 पुट करदा तो y नूं भी 1 पुट करदा, ठीक है, x नूं भी 1 पुट करदा तो y नूं भी 1 पुट करदा। इत्थे पुट करदे हैं 2 × 1 3 × 1 इक्वल्स टू 5, 2 सो 5 इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, मैं x की वैल्यू y की वैल्यू पुट की, इन्हों सॉल्व किया, मेरे को 5 इक्वल्स टू 5 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यदा मतलब कि जो मैं x ते y दी वैल्यूज़ नूं पुट किया है, x कितना पुट किया 1,
ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ x ਤੇ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x + y = 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2 + 2 ਇਹਨੇ 4 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 4 = 4। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। ਸੋ 0 4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, y ਨੂੰ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਸੋ ਜਦੋਂ x 4 ਹੈ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ 5 10 15 ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, x ਤੇ y। ਉੱਪਰ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ x 0 ਹੈ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4, ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ x 4 ਹੈ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0, ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ x 2 ਹੈ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ y 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ 1 3, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, 1 3 ਨਹੀਂ 1 4 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 3 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ x ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਲੈ ਲਿਆ, y ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 5 = 4। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0.14 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। x axis x o x dash, y o y dash, points plot कर देंगे 1 2 3। इस तरफ केड़े points आंदे ने नेगेटिव, इस तरफ 1 2 ते 3, नीचे नेगेटिव points। ठीक है, प्लॉट कर दें इनू। जदों x 0 है y दी वैल्यू 4, जदों x 0 है तां y दी वैल्यू 4। ਇਹਦਾ मतलब सानू y पॉइंट ड्रॉ करना पेगा। एक्सटेंड करके ਆਪਾਂ ड्रॉ कर लिया। ਜਦੋਂ x 0 है y ਦੀ वैल्यू 4। सो आ पॉइंट हो गया 0 4।
ਜਦੋਂ x 4 है y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, मतलब x ਵੱਲ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਲੋ 1 2 3 4, ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 4 0। ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾइन आई है, ये स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंट करती है x प्लस y इक्वल्स टू 4। ये जी स्ट्रेट लाइन आई है, ये साडी इक्वेशन नू रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस इक्वेशन का अगर जोमैट्रिकल मीनिंग पूछा जाए, ਇਹਦਾ मतलब सल्यूशनस ਕੱਢ के उन्होंने सल्यूशनस नू पॉइंट्स नू प्लॉट करके दो पॉइंट्स नू ज्वाइन करांगे तो साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो ये जी स्ट्रेट लाइन है, ये साडी इक्वेशन नू रिप्रेजेंट करती है। हुण असीं देखते हैं कि जिहड़ा साडा तीसरा सल्यूशन है 2 2, इस लाइन के उत्ते लाई करता है या नहीं। y की वैल्यू 2 ते x की वैल्यू 2, ठीक है। 2 2 पॉइंट जो है वो जरूर लाई करेगा, लेकिन अगर आप 1 4 पॉइंट देखिए, 1 x की वैल्यू 1 ते y की वैल्यू 4, does not lie on line। 1 4 साडा पॉइंट लाइन दे ऊपर नहीं आया, लेकिन जो 2 2 पॉइंट सी वो लाइन दे ऊपर आ रहा है। सो ज्योमैट्रिकल मीनिंग सल्यूशन का ये हुंदा है कि अगर कोई भी पॉइंट सल्यूशन बनता है, ਇਹਦਾ मतलब वो जो साडी लाइन है ਉਹਦੇ ऊपर लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट सल्यूशन नहीं बन रहा है, ਇਹਦਾ मतलब वो लाइन के ऊपर नहीं आएगा। सो इस चीज़ तो सानू एक रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट की है साडा सो जो आप ज्योमैट्रिकल मीनिंग की गल करनी है, जो असी ग्राफ ड्रॉ किया लाइन का, इक्वेशन ड्रॉ की, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ देखा कि ਕਿਹੜੇ पॉइंट्स ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लाई करते हैं तो ਕਿਹੜੇ पॉइंट्स नहीं लाई करते। ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स सल्यूशन बननगे वो लाइन के उपर आउणगे। जिस तरह 4 0 साडा सल्यूशन सी, 0 4 सल्यूशन सी, तो एक पॉइंट असीं कढिया सी 2 2। इसी तरह अगर मैं 1 3 देखा, 1 3 जो है वो भी सल्यूशन बन रहा सी। इक्वेशन सी साडे कोल x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर x की वैल्यू 1 पुट करिए, y की वैल्यू 3 पुट करिए तो 4 के बराबर आ जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब 1 3 इज अ सल्यूशन, एक सल्यूशन बनता है। तो अगर मैं 1 3 ਨੂੰ प्लॉट करा, 3 इधर आ गया, 1 आ रहा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ स्केल ਨਾਲ प्लॉट करोगे ਤੁਸੀਂ देखोगे कि 1 3 ਜਿਹੜਾ पॉइंट है वो भी लाइन के ऊपर ही आएगा, ठीक है। सो जिन्ने भी पॉइंट अगर सल्यूशन बननगे तो लाइन के उपर आउणगे। अगर कोई पॉइंट सल्यूशन नहीं बन रहा, जिस तरह कि 1 4 सल्यूशन नहीं बन रहा सी, तो लाइन तो बाहर चला गया, वो लाइन के उपर नहीं आउणगे। सो साडा रिजल्ट की है, रिजल्ट ये कि एवरी सल्यूशन एक्स वाई, सल्यूशन साडे कोल एक्स वाई दी फॉर्म च आउणगे। एवरी सल्यूशन एक्स वाई ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। जिन्ने भी सल्यूशंस होंगे वो लाइन के कोई ना कोई पॉइंट होंगे रिप्रेजेंटिंग इट। जो लाइन है वो की रिप्रेजेंट कर रही है साडी इक्वेशन। सो अगर कोई भी पॉइंट सल्यूशन बनता है तो लाइन के उपर जरूर आएगा। अगर जिन्ने भी पॉइंट्स लाइन के उपर आ रहे हैं वो सारे सल्यूशन भी जरूर बननगे। सो ये साडा ज्योमैट्रिकल मीनिंग सीगा सल्यूशन का। ये जिन्नी भी आप गल्लां डिस्कस कीतियां ने सारियां तुसीं 9th विच पढ़ चुके हो। ये सिर्फ आप रिवीजन की सी। हुण आप गल करते हैं जो आप इस चैप्टर दे विच पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरिएबल्स। सो जो आप लीनियर इक्वेशनस की गल करनी है इन 2 वेरिएबल्स, जो आप एक पेयर की गल करनी है उदों किस तरह लिखता है वो बुक दे विच जो लिखा है वो कहता है कि लीनियर इक्वेशनस आर इन सेम 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कोई भी दो इक्वेशनस जिहड़ियां कि सेम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई होण उन्होंने आप कहने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, जिस तरह एक इक्वेशन लिख ली मैं, एक लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। इसी तरह अगर मैं एक होर इक्वेशन लिख ला सेम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई दे विच,
5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। एक होर इक्वेशन लिख ली सेम वेरिएबल्स लैके x एंड y, इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं कहांगे असीं एक पेयर बन गया लीनियर इक्वेशनस दा। अगर मैं इत्थे वेरिएबल्स डिफरेंट लै लैंदी, अगर मान लो मैं इत्थे z लै लैंदी, एक भी वेरिएबल डिफरेंट लै लैंदी तां इन्हां दा पेयर नहीं बनना सी, इन्हां नूं असीं सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो सेम वेरिएबल होना चाहिए xy xy। इस तरह दी इक्वेशनस ने जिहड़ियां आपां इस चैप्टर दे विच पढ़नियां ने, हमेशा आपां दो इक्वेशनस लैके चलांगे। हुण तक असीं सिੱਖਿਆ है एक इक्वेशन नूं सॉल्व करना, हुण असीं करांगे दो इक्वेशनस बना के दो इक्वेशनस नूं सॉल्व करना सीखांगे कि इन्हां दो इक्वेशनस नूं किस तरह सॉल्व करना है, इन्हां दे सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करने हैं। उस तो पहला आपां जनरल फॉर्म करते हैं। जनरल फॉर्म की होएगी a1 x, a1 मतलब पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट, b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं वेयर a1 a2 b1 b2 comma c1 c2 are real numbers and जिन्ने भी कोफिशिएंट्स ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे की होंगे रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शंस, कोई भी नंबर हो सकता है, अंडर रूट वाले भी हो सकते हैं। एंड a1 b1 a2 b2 all are not 0। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ a ਤੇ b ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ a1 b1 a2 b1 ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ a1 0 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ y ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ b1 0 ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ a1 b1 a2 b2 ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ लीनियर इक्वेशंस दे पेयर दी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हुण आपां नूं पता है कि जदों भी आपां एक इक्वेशन नूं ड्रॉ करदे हां तां अपने कोल एक स्ट्रेट लाइन आउंदी है। हुण साडे कोल इत्थे दो इक्वेशंस ने, दो इक्वेशंस नूं जदों आपां ड्रॉ करांगे तां साडे कोल टू स्ट्रेट लाइनस आउणगीਆਂ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, दो इक्वेशंस है तो अपने को तीन पॉसिबिलिटीज बननगियां, 3 पॉसिबिलिटीज। दो इक्वेशंस ने, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 ते x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशंस ने, इस इक्वेशन को ड्रा करूंगी तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस इक्वेशन को ड्रा करूंगी तो सारे को दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी, सेकंड है ना, सेकंड स्ट्रेट लाइन। सो इस तरह मेरे को दो स्ट्रेट लाइनस आ गई। हुण दो स्ट्रेट लाइनस कार्टीजियन प्लेन दे विच तीन तरीके नाल पईयां हो सकदियां ने, या तो हो सकता है कि वो आपस च कट रही होण। ठीक है, की कहांगे इंटरसेक्टिंग लाइनस। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 वाली इक्वेशन बनाई है, ये बनाई है x माइनस y इक्वल्स टू 4 वाली। वो दोनों एक दूसरे नू क्रॉस कर रही ने, इंटरसेक्टिंग लाइनस हो सकती हैं, या हो सकता है कि वो दोनों पैरेलल जान, पैरेलल लाइनस। तीसरा केस की है कि हो सकता है एक लाइन दे ऊपर ही दूसरी लाइन पई होवे। ठीक है, कोइंसाइडिंग लाइनस। सो साडे कोल 3 केसेस बन गए कि जदों भी किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇसेस ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣ,
पैरेलल लाइंस बन जाए, या एक लाइन दे ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाए, मतलब वो कोइंसाइडिंग लाइंस बन जाए। सो इन 3 केसेस ਨੂੰ याद रखना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी बच्चों, हुण साडे कोल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे विच सानू दो लीनियर इक्वेशनस दित्तियां होईयां ने, पेयर दिता होया लीनियर इक्वेशनस दा। क्वेश्चन ये है कि आपां इहनूं ज्योमैट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब इन्हां इक्वेशनस नूं ड्रॉ करके दिखाना है। सब तो पहला आपां सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। इहनूं आपां नाम दे दिंदे इक्वेशन नंबर 1, इहनूं नाम दिता इक्वेशन नंबर 2। सब तो पहला इक्वेशन नंबर 1 दे सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। किस तरह करते हुंदे आ? x + 2y = 4 है साडे कोल, बॉक्स बना लांगे। एक बार जो x नूं 0 पुट किया, इत्थे x नूं 0 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 नूं नीचे ले जाएंगे, कटिंग करांगे, आंसर आ गया 2। सो जो x 0 है, y की वैल्यू है साडे कोल 2। जो मैं y नूं 0 पुट करदा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इत्थे आपां y नूं 0 पुट कर दिंदे आ, तो x कितना आ गया? 4। सो फर्स्ट इक्वेशन का असी टेबल बना लिया। इस तरह सैकेंड इक्वेशन का टेबल बनाने हैं। ठीक है, पहला x नूं 0 पुट कर दिए। अगर x 0 हो गया तो 4y = 12 बच जाएगा। y = 12 नूं 4 नाल डिवाइड करिए, की आंसर आएगा साडे कोल? y = 3 कटिंग करके। सो y की वैल्यू 3 आ गई। उस तो बाद अगर y नूं मैं 0 पुट करदा, y की वैल्यू इत्थे 0 पुट करती तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो मेरे को बचेगा 2x = 12। x रखिया, 2 नूं नीचे लै गए तो x कितना आ गया? 6। सो x की वैल्यू आ गई 6। सो साडे कोल पॉइंट्स आ गए फर्स्ट इक्वेशन दे, सैकेंड इक्वेशन दे। हुण इन्हां पॉइंट्स की हैल्प नाल आपां दोनों इक्वेशनस नूं कार्टीजियन प्लेन के उपर ड्रॉ करते हैं। 0 हुण इत्थे आपां इस तरह का इसलिए बनाया क्योंकि मैनूं नैगेटिव वैल्यूज़ तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे टेबल्स विच नैगेटिव वैल्यूज़ है नहीं, मैनूं 6 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए नहीं। सो इसलिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब नाल आपां ड्रॉ कर लिया। ये एक्सिस होंदियां ने अपने y डैश एक्सिस, x डैश o x एक्सिस। इस तरफ आप ड्रॉ करांगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6। इस तरफ होंदे ने अपने कोल नेगेटिव नंबर्स, आप लिख लेने हैं, पर आपां नूं जरूरत नहीं पैनी क्योंकि अपने कोल सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ने टेबल्स दे विच। y दे उधर पॉजिटिव नंबर्स लिखांगे। सो कार्टीजियन प्लेन दे विच x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। हुण इन्हां पॉइंट्स नूं प्लॉट करते हैं। सब तो पहला है 0 2। जदों x 0 है तो y 2 है। x 0 है मतलब x एक्सिस वाल तो चलना नहीं, y वाल चलांगे। ये पॉइंट बन गया 0 2। दूसरा पॉइंट जदों x 4 है, y 0 y 0 है मतलब y वाल नहीं चलना, x वाल कितने स्टेप्स चलना है? 4 स्टेप्स, 1 2 3 4। सो ये पॉइंट बन गया 4 0। ठीक है, ध्यान नाल पॉइंट लिखना है। x वाल आपां 4 स्टेप्स चलने हैं। सो पहला 4, उस तो बाद y। सो इन्हां पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दांगे। ये साडे कोल किहड़ी लाइन आई है? x + 2y = 4। सो लाइन आ गई x + 2y = 4। दूसरी इक्वेशन है 2x + 4y = 12। इन्हों आप ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है जदों x 0 है, y 3 है। x 0 है मतलब x एक्सिस वाल नहीं चलना, y वाल 3 स्टेप चलने हैं, 1 2 3। पॉइंट आ गया 0 3।
दूसरा पॉइंट है x एक्सिस वाल 6, y वाल 0, 6 0। सो इनू भी ड्रॉ कर दिए। ये साडे कोल केड़ी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। सो इस क्वेश्चन दे विच सानू दो इक्वेशनस दित्तियां होईयां सी। दोनों इक्वेशनस दे पहला असी सॉल्यूशंस फाइंड करके टेबल बना ले। दोनों इक्वेशनस दे अलग अलग टेबल्स बनाने हैं। टेबल्स बना के उन्हां पॉइंट्स नू जदों आपां प्लॉट कीता, जदों आपां पहले टेबल नाल जेड़े पॉइंट्स नू प्लॉट कीता सी वो साडे कोल फर्स्ट इक्वेशन आई सी। दूसरा टेबल यूज़ करके पॉइंट्स प्लॉट करके उन्हां नू ज्वाइन करके साडे कोल सैकेंड इक्वेशन आ गई। हुण ये दोनों लाइन्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ 2x + 4y = 12 ਤੇ x + 2y = 4, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ। रिप्रजेंट करना जोमैट्रिकली का मतलब है कि आप उन्होंने ड्रॉ करके दिखाना है। लाइन्स नूं आपां किस तरह ड्रॉ करते हैं, कार्टीजियन प्लेन के उपर पॉइंट्स नूं प्लॉट करके उन्होंने पॉइंट्स नूं जदों आपां ज्वाइन करते हैं तो साडे कोल स्ट्रेट लाइन्स आ जांदियां ने। ठीक है। की कीता असीं दो इक्वेशनस लित्तियां, उन्हां तो टेबल्स बनाए, उन्होंने प्लॉट करता। साडे कोल केसिस किन्ने आ, 3 केसिस हुंदे आ कि या वो इंटरसैक्ट करनगियां या पैरलल ते या कोइंसाइड। इस क्वेश्चन दे विच दोनों लाइन्स ने वो पैरलल लाइन्स बन रही ने। सो इस तरह के होर भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, हुण साडे कोल क्वेश्चन है इस फॉर्म दे विच, स्टेटमेंट दी फॉर्म दे विच क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स ने एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स ने ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, ₹160। एक दिन दे विच 2 kg एप्पल्स ते 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी सी ₹160। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, एप्पल्स की kg भी चेंज हो गई तो ग्रेप्स की भी कितनी आ गई ₹300। रिप्रजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली। एक तो इनू आपां इक्वेशनस च लिखना है एंड ज्योमैट्रिकली, फिर उन्होंने इक्वेशनस नू आपां ड्रॉ करके देखना है कि वो जिहड़ी इक्वेशनस ने वो किस तरह दियां लाइन्स बनदियां ने। सो सब तो पहला नोटिस करते हैं इस क्वेश्चन दे विच कि साडे कोल दो वेरीएबल ने, किहड़े किहड़े, एप्पल्स ते ग्रेप्स। ठीक है, एप्पल्स ते ग्रेप्स दो वेरीएबल्स ने। आपां लेट कर लैंदे आ कि एप्पल्स नू असी x नाल शो करना है ते ग्रेप्स नू असी y दे नाल शो करांगे। ठीक है, दो वेरीएबल्स ने एप्पल्स ग्रेप्स। पूरे क्वेश्चन दे विचों एप्पल्स ते ग्रेप्स की गल कर रहे हैं। सो अपने को दो वेरीएबल्स आ गए, उन्होंने आपां किस तरह डिनोट करांगे, एप्पल्स नू x नाल ते ग्रेप्स नू y नाल। हुण आपां इक्वेशन बनाने हैं। देखो इक्वेशन किस तरह बनावांगे। पहला उन्हें क्या 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स, x नू आपां एप्पल्स नाल डिनोट कर रहे हैं। सो 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स प्लस 1 kg ग्रेप्स। 1y मतलब 1 kg ग्रेप्स, 1 आप लिखते नहीं होंगे। सो ये बन गया 2x + y। दोनों मिला के कितनी कॉस्ट बन रही है ₹160। सो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह आप सैकेंड इक्वेशन बनावांगे। सैकेंड इक्वेशन चो की कहना कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स। सो की लिखांगे 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स प्लस 2 kg ग्रेप्स किधे बराबर आएगी, इक्वल्स टू ₹300। सो ये साडे कोल दो इक्वेशनस आ गई। मतलब इस पूरी स्टेटमेंट नू असी दो इक्वेशनस दे विच रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस करन तो बाद हुण इन्हां दे असी सॉल्यूशंस फाइंड करांगे ते इन्हां नू ज्योमैट्रिकली रिप्रजेंट करांगे। सो उन्हें क्या सी क्वेश्चन दे विच कि रिप्रजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली, कि तुसीं इस इक्वेशन नू, इस स्टेटमेंट नू एल्जेब्राइकली लिखोगे। तुसीं मैच इस पूरी स्टेटमेंट नू किद्दां लिखोगे। ठीक है, सो इस पूरी स्टेटमेंट नू जिहदे विच एप्पल्स ते ग्रेप्स की गल कर रहे हैं, मतलब दो वेरीएबल आ गए। एप्पल्स नू असीं x नाल शो करता, ग्रेप्स नू y दे नाल। इक्वेशन किस तरह बनाई, 2 kg एप्पल्स
मतलब 2x 1 kg ग्रेप 1y इक्वल्स टू 160 बनता है, तो 4 kg एप्पल्स मतलब 4x ਤੇ 2 kg ग्रेप्स 2y इक्वल्स टू 300। सो साडे कोल एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ 0 ਲਿਖ ਦੋਗੇ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ y ਨੂੰ 0 ਲਿਖ ਦੋਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ xy ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।